हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? कास्टिंग के लास्ट सेशन हमने सीखा था कि सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, राइट? हमने देखा कि जब आप अपने मोल्टेन मेटल को, लिक्विड मेटल को डालते हैं, राइट, इन दैट व्हाट वी से मोल्ड कैविटी। तो लेट्स से दिस इज आवर मोल्ड कैविटी, राइट? ये हमारा मोल्ड कैविटी है और इस मोल्ड कैविटी में आपने डाला लिक्विड मेटल। तो लेट्स से स्प्रू है एंड देन वी हैव दिस रनर and then I said कि riser होगा and then thereafter we will have this mold cavity. So let me show you that mold cavity and then we'll discuss. This is the riser and from here the liquid metal comes, fill in this mold cavity. So what happens? We have that liquid metal over here like this that you pour here in the sprue. आप liquid metal को यहाँ sprue में pour करते हैं, ये बहता हुआ आता है, कैविटी को फिल करता है। कैविटी को फिल करने के बाद बचा हुआ मोल्टेन मेटल यहाँ राइज करता है इस कैविटी में, जो कि आपने एक्स्ट्रा बना रखा है मोल्ड कैविटी के पास में, और इसको हम लोग कहते हैं राइजर। एंड देन यू केम टू नो दैट कि जब यहाँ पे लिक्विड मेटल को पोर किया गया तो इसका टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से काफी ज्यादा था, ताकि इस मेटल की फ्लूइडिटी बनी रहे, राइट? When you pour that liquid metal over here, the temperature was much more than the melting temperature. That molten metal can flow through all these channels and then can reach the mold cavity, है ना? तो यहाँ पे भी मान लो कि जब liquid metal पहुंचा तो temperature was pouring temperature. Now what will happen? You see, all is present sand plus clay plus water. इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है भैया? तो यहाँ पे सैंड प्लस क्ले प्लस वाटर प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पे मेटल को आपने पोर किया, as soon as you pour the liquid metal over there, what happened? Heat transfer started. So slowly the temperature inside the cavity of the liquid metal will start to reduce, and the temperature will reduce to Tp to let us say Tm. What will happen as soon as the temperature will reduce to Tm? जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होकर आएगा Tm पे, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन की शुरुआत हो जाएगी। सॉलिडिफिकेशन begins. Then if it is pure metal, solidification will happen at a constant temperature. If it is an alloy, solidification will happen in a range of temperature. Anyway, temperature after solidification reached the freezing temperature, solidification ends. But still अंदर में जो casting है वो क्या है? Red hot है. Now that will go to the room temperature. Further heat का transfer होगा and then it will be at room temperature. Now what happens in all these stages, first stage, second stage and third stage, material undergoes shrinkage that I had explained in the last class. और ये जो पहले दो स्टेज के श्रिंकेजेज हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको कौन कंपनसेट करता है? राइजर करता है कंपनसेट। तो अगर राइजर का काम है कंपनसेट करना यहाँ पे हो रहे वॉल्यूम की कमी को, जिसको आप श्रिंकेज कहते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों और बहनों, आप इस बात को समझिए पहले कि ये कैसे यहाँ पे कंपनसेशन करता होगा। देखो, राइजर में जो लिक्विड मेटल ऊपर की तरफ उठ के गया, इस कैविटी में जो लिक्विड मेटल ऊपर की तरफ ऐसे उठ के गया, यहाँ पे जब सॉलिडिफिकेशन की शुरुआत होगी, like it will always start from the boundary na, and thereafter the solidification fronts will move like this. So as there that liquid metal is getting solidified, what will happen? The volume will be getting reduced over here, so that extra of the first two stages, that is initially in the liquid state of shrinkage and then during the phase change shrinkage. इसका मतलब ये भी है कि अगर राइजर से लिक्विड मेटल वापस आकर के यहाँ पे हो रहे श्रिंकेज को कंपनसेट करता है, if this liquid metal in the riser comes back and compensates for the shrinkage that is happening in the mold cavity, then it is must that the liquid metal which is there in the riser cavity must not solidify unless until the liquid metal in the mold cavity solidifies. अगर राइजर का काम है यहाँ पे कंपनसेट करना पहले दो स्टेज के श्रिंकेज को, तो ये सुनिश्चित करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि राइजर के अंदर जो लिक्विड मेटल है वो तब तक लिक्विड रहता है जब तक कि इस कास्टिंग कैविटी के अंदर का मेटल पूरा पूरा सॉलिडिफाई ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर इस कैविटी के अंदर जो लिक्विड मेटल है उसके सॉलिडिफाई होने से पहले अगर राइजर के अंदर का लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो क्या वो पहले दो स्टेज के श्रिंकेज को अच्छे से कंपनसेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स इफ यू वांट टू डिस्कस द सेम, देन व्हाट वी कैन से दैट द सॉलिडिफिकेशन of liquid metal, or you can say solidification time of liquid metal into the riser cavity, the solidification time of liquid metal into the riser cavity, the solidification time of liquid metal into the riser cavity must be more than the solidification time of the liquid metal into the mold cavity. आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर राइजर को पहले 2 स्टेज के श्रिंकेज को कंपनसेट करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों लिक्विड मेटल जो कि भरा हुआ है राइजर में, उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग के अंदर के भरे हुए लिक्विड मेटल के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए. और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट कि टू कंपनसेट the first 2 stage of shrinkages, to compensate for the first 2 stage of shrinkages, this is must. Solidification time of riser must be much more than the solidification time of the casting. Now, long ago in Russia, there was a scientist, not Rasputin. The name was Kovrinov. चलो दीदी, कोब्रिनोव, ठीक है. अब जो पढ़ना चेवरोनीव, जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन ठीक है, रसियन लोगों का नाम ही ऐसा होता है, बेकार फालतू के लिए. कोब्रिनोव, हाँ, लेकिन काम उसने बड़ा अच्छा किया. You see, he thought of this, and then what he thought of, कि अगर राइजर को डिजाइन करना है, if riser has to be designed, this must hold. That's what we have to consider. That means solidification time of the liquid metal is going to play a very important role. How much time will it take to solidify? So he gave a thought that this solidification time of liquid metal will be directly proportional to any function of volume of the liquid metal in any cavity. क्योंकि देखो, वॉल्यूम जितना ज्यादा है, कहने का मतलब लिक्विड मेटल के अंदर हीट कंटेंट उतना ज्यादा होगा. वॉल्यूम ज्यादा तो मास ज्यादा, तो वहां पे सेंसिबल हीट जो mc डेल्टा टी है वो ज्यादा, लेटेंट हीट जो m इंटू एल एच है वो ज्यादा, डिग्री ऑफ सुपर हीट वो भी ज्यादा. तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा मास, तो उतना ज्यादा हीट, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस हीट को बाहर निकलने में, मतलब उतना ज्यादा टाइम लगेगा सॉलिडिफिकेशन होने में. दैट मींस सॉलिडिफिकेशन टाइम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. एंड देन यू सी, solidification also depends, like solidification purely depends upon heat transfer, that is at what rate is the heat getting transferred out, है ना. solidification पूरा डिपेंड करेगा कि किस रेट से लिक्विड मेटल से हीट बाहर निकल रहा है. और अनडाउटेडली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is going to be inversely proportional to the surface area through which heat transfer is taking place, है ना. It is going to be inversely proportional to the surface area. So he also gave this thought कि this solidification time, you see, अगर surface area ज्यादा है तो rate of heat transfer ज्यादा है, तो solidification time कम होगा ना, जल्दी solidification हो जाएगी ना उधर. So if the surface area is more, rate of heat transfer will be more, so solidification time will be less. If the surface area is less through which the heat is going to be transferred, so what will happen? Rate of heat transfer will be less, so it will take more time for the solidification to occur. That means this solidification time of the liquid metal into the mold cavity must be inversely proportional to some function of surface area through which heat transfer is allowed. Yes, ये दो ख्याल तो इनके मन में पहले आएगी. फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, thousands of them with different types of liquid materials and different type of mold materials. And then when he tabulated all the data, what he found that with the solidification time of liquid metal in any cavity, जरूरी नहीं है मोल्ड कैविटी, किसी कैविटी, मोल्ड कैविटी हो, राइजर कैविटी हो, रनर कैविटी हो, स्क्रू कैविटी हो, किसी भी कैविटी की अगर बात करें, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम जो था लिक्विड मेटल का, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब इन्होंने इस एम्पिरिकल रिलेशन को एस्टैब्लिश किया, तो पाया इट इज गोइंग टू बी k मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन a होल रेज टू द पावर n. सर जी यहाँ पे है क्या ये सब? कुछ भी नहीं, सब पता है आपको क्या क्या है ये. देखिए, हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो और भी कहीं बताई नहीं होंगी, वो भी तुम सीखोगे आज. v क्या हो गया, v क्या हो गया, v क्या हो गया, v क्या हो गया, v इज द
वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कौन सा कैविटी? जिस कैविटी में लिक्विड मेटल के सॉलिडिफिकेशन का टाइम निकालना है वो वाला वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ए क्या है? ए इज द सरफेस एरिया, बट माइंड इट, of cavity only, surface area of cavity only, but only that surface area will be accounted for through which heat transfer is taking place. आप उस सरफेस एरिया को काउंट मत करना जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा हो सकता है किसी एक सरफेस को हमने इंसुलेट करके रखा हो, है ना। तो इफ सच सॉर्ट ऑफ केसेस विल कम टू नो, डोंट वरी, कि उस एरिया को ही केवल काउंट किया जाना है इस फॉर्मूले में। मान लो कि एक सिलिंड्रिकल इस तरीके का कैविटी, ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नाउ, यहां से ही ट्रांसफर हो रहा है, यहां से 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 नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला सरफेस एरिया काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज दिस के इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट। के को बोलते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट। और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये जो सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट है आपका, ये डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड मेटल कैसा है, आपका मोल्ड मटेरियल कैसा है। इतना ही नहीं, लिक्विड मटेरियल और मोल्ड मटेरियल में कैसा रिएक्शन हो रहा है, कैसा लिक्विड मटेरियल है, कैसा मोल्ड मटेरियल है, एंड हाउ इज दैट इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन लिक्विड मेटल एंड मोल्ड मटेरियल। लिक्विड एंड दैट मोल्ड मटेरियल रिएक्शन यू कैन से। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो के की वैल्यू अलग होगी, कम रिएक्टिव है तो के की वैल्यू अलग होगी, और ये के का चार्ट आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। एन क्या है? एन यहाँ पे एक्सपोनेंट है, एन इज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ओवर हियर, एंड माइंड इट, और कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये सारी चीजें बस आपको अनमैचेबल क्लासेस में मिलने वाली है कि एन का जो वैल्यू है, सबको, दुनिया को, जमाने को 90 हजार रुपए दे करके कोचिंग करने वालों को, अरे कहीं कहीं तो 1.25 लाख भी हो गई है फीस, हाँ। और शुरू में कुछ दिनों पहले 5,000 में स्टार्ट किए थे कुछ लोग, बड़े लोग, है ना, रिवॉल्यूशन 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 करने लगे थे। 5,000 में सुना है कि वो भी बढ़ा के 15,000 या 10,000 कुछ कर दिया, हाँ? ऐसा कुछ है क्या? कोई नहीं, कहीं पता नहीं चलने वाला, इधर ही पता चलेगा अनमैचेबल क्लासेस में। क्या कि हर जगह तो फॉर्मूला यही देखे होगे तुम, के इंटू वी अपॉन ए होल टू दी पावर एन, और एन की जगह हमेशा और हमेशा और हमेशा दोस्तों, वादा करता हूं इस क्लास के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी ये जानकारी, केवल 2 पढ़ा होगा तुमने। और बिलीव मी, आने वाले गेट 24 या 25 में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पूछने वाला है। वैसे तुम लोग जानते हो जो बोलता हूँ वो होता है, जरूरी नहीं है कि वहां 2 ही हो, क्योंकि n की वैल्यू कैन रेंज बिटवीन 1.5 एंड 2। ठीक है, इन केस इफ नथिंग इज मेंशन्ड यू विल टेक दिस एज 2, बट इन केस माइंड इट, इफ इन द क्वेश्चन दे आस्क टू फाइंड n, तो डायरेक्टली 2 आंसर मत कर देना कि सर जी हमने तो फार्मूला रटा ही था के इंटू वी बाई ए का होल स्क्वायर, तो 2 आंसर कर दिया सर, ऑप्शन ए में ही था। ऑप्शन ए में ही देंगे 2 वो, ताकि जल्दी नजर पड़े तुम्हारी और तुम खुश हो जाओ कि वाह 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, कहानी वहां कुछ और होगी। अगर फाइंड करना हो, बिलीव मी, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर राइट इट 2, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, उसको फाइंड करना होगा, ठीक है, बिकॉज एन का वैल्यू कैन रेंज बिटवीन 1.5 एंड 2। क्लियर? चलो अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यू केम टू नो दैट दिस इज व्हाट इज हाउ द सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेटेड। यस, वन मोर थिंग, let's say if I take volume V in meter cube, surface area in meter square, and let's say time we are taking in terms of like second, and n let us say we are taking as 2, so what will be the unit of this solidification constant? The unit of this solidification constant will become second per meter square। और मान लो इनकी वैल्यू 2 नहीं है, तो जो भी होगा you will be writing second per meter to the power n, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखो, ये चीजें अभी तक ऐसी हैं जो कि पिछले 40 साल के इतिहास में कभी भी गेट में पूछा नहीं गया है। 40 साल तो नहीं हुआ है, 87 में गेट मैकेनिकल स्टार्ट हुआ था, इट्स लाइक 36 ईयर्स, ठीक है। तो 36-37 साल के इतिहास में आज तक इन चीजों को नहीं पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन यही बनता है, इसके लिए मैंने वहां लिखा 24-25, ठीक है। जरूरी नहीं किसी साल आए, अगले साल जरूर आएगा, उस साल नहीं आएगा तो उसके अगले साल जरूर आएगा, ये भी वादा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, किधर से बढ़े, इधर से बढ़े, कहीं से तो बढ़ते हैं, यहाँ से, हाँ चलिए। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब अगर राइजर को पहले 2 स्टेज के श्रिंकेजेस को कंपनसेट करना है, तो ये अश्योर करना होगा कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। कहने का मतलब वी कैन राइट के मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द राइजर डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द राइजर होल टू द पावर 2, कुछ नहीं दिया तो 2 लिया हमने, और ये किसका, राइजर का, वॉल्यूम ऑफ राइजर, यहां क्या लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ राइजर, मस्ट बी ग्रेटर देन के मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग होल पावर 2। भाई साहब
अगर आपने बचपन में कुछ किया होगा जिंदगी में, तो ये लिखते हुए शायद आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दिया, के से के उड़ा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसलिए हमारा स्क्वायर उड़ गया। तो वी आर अपॉन ए आर ग्रेटर देन वी सी अपॉन ए सी होना चाहिए। और अगर आप कास्टिंग पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसको बोलते हैं मॉडुलस। कास्टिंग में मॉडुलस का मतलब होता है वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो। अगेन मैं याद करवा दूं, सरफेस एरिया वो जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो V बाई ए रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। और इस मॉडुलस को हम लोग डिनोट करेंगे अभी से M से। M इज इक्वल टू V/A। तो मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग बाई सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग थ्रू व्हिच हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। मॉडुलस ऑफ राइजर मतलब वॉल्यूम ऑफ राइजर टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइजर टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द राइजर थ्रू व्हिच हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। माय डियर, वन मोर टर्म आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। एक टर्म और बताऊंगा आपको यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। और अगर मैं इसको डिनोट करूं लेटर से कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्स से, तो दिस इज एक्चुअली जस्ट इनवर्स ऑफ मॉडुलस, 1/मॉडुलस। मतलब ये क्या है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। फिलहाल कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक को गोली मारो, आने वाले समय पे इसकी बात चलेगी तो फिर आपको याद दिलाऊंगा। यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ राइजर मस्ट बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। मतलब वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो राइजर हमेशा ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो ऑफ कास्टिंग के, नहीं तो क्या समस्या आएगी? राइजर पहले दो स्टेजेस के श्रिंकेजेस को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। चलो, तो इसका मतलब ये मॉडुलस काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो मैं तो आपको ये कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, कि कुछ शेप्स के मॉडुलस को तो डायरेक्टली याद रखो, और सच बताओ तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा आनंद कि बस सर इतनी सी बात, हाँ जी सर इतनी सी बात, इसीलिए आपको ये बता रहा हूं। और बिलीव मी, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, कितने भी मजबूत न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो, ताकि दूसरे लोगों को थका दें, बट अगर आपको मॉडुलस पता है डिफरेंट शेप्स का, तो वैसे क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे बाएं हाथ का खेल। इस तरफ लिखा शेप, उस तरफ लिखा मॉडुलस। नंबर 1 लेट अस टेक, पहला लेते हैं, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों क्यूब, CUBE। क्यूब भैया कैसा दिखता है? मुझे तो मालूम नहीं सर, आप बताओ। बताता हूं, ये दिखता है ऐसा है शायद। क्यूब का साइड मान लो कि A है, और अगर इस क्यूब को ड्रॉ किया तो आपने देखा there are 6 sides of cube, not only six, sorry, the side of the cube is let us say A, so there are these 6 faces of the cube, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, एक आगे, और एक बाएं, एक दाएं। देयर आर these 6 faces, कहते हैं ना हिंदी में 6 फलक हैं। और हर एक फेस का एरिया जो है वो कितना है मेरे प्यारे दोस्त? A square है। such sort of how many faces are there? 6 faces are there। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीच में अगर जगह हमने छोड़ी कैलकुलेशंस के लिए, तो आप लिखोगे मॉडुलस जो होगा किसका? क्यूब का, वो होगा वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो ऑफ व्हाट? दिस शेप, क्यूबिकल शेप। वॉल्यूम क्या है क्यूब का? A क्यूब। सरफेस एरिया क्या है? 6 स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है, कैलकुलेट करके आएगा A/6। ठीक है। देन दूसरा, दूसरा देखो, लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप लेते हैं, और एक बात, हाइट और डायमीटर उस सिलेंडर का बराबर है। आपने लिया सिलेंडर, हाइट और डायमीटर सिलेंडर का बराबर है। वी टुक द सेकंड केस ऑफ सिलेंडर इन विच द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बोथ आर इक्वल। सो माय डियर, दिस इज हाउ दैट सिलेंडर गोइंग टू लुक लाइक अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही कुछ दिखने वाला है आपको। हाइट और डायमीटर मैंने क्या बोला? सिलेंडर का बराबर है। तो ये है हाइट और ये है डायामीटर। हाइट और डायमीटर मैंने क्या बोला? सिलेंडर का बराबर है। तो अब यहां पे अगर मॉडुलस ऑफ सिलेंडर हम निकालने जाएं, तो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हाइट एंड डायमीटर इक्वल है। वैसे आप इसका वॉल्यूम कितना लिखते हो? इसका वॉल्यूम लिखते हो π/4d² इंटू एच। π/4d² इंटू एच। एच और डी बराबर है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? π/4d³ वॉल्यूम। सरफेस एरिया की अगर बात करें, ऊपर का सरफेस एरिया π/4d², नीचे का सरफेस एरिया π/4d², 2 टाइम्स π/4d² मींस π/2d² प्लस। अगर इस सरफेस एरिया की बात करें हम, सिलिंड्रिकल वाले सरफेस एरिया की, तो कैसे निकालोगे? नीचे का पेरीमीटर πd मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से πd। एच और डी बराबर है, डायरेक्ट πd² लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो ऊपर तो चलो वैसा का वैसा छोड़ दो, π/4d³। यहां कितना है? पाई की गोली मारो तो आधा d² और 1 d², 1.5 d² है। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 3/2
पाई डी स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई, करो सिंप्लीफाई भाई, डी बाई सिक्स आएगा। मजा आया है ना। अगर क्यूब साइड ए का है तो मॉडुलस आता है ए बाई सिक्स, अगर सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर बराबर है तो मॉडुलस आता है डी बाई सिक्स। इतना ही नहीं, रुको अभी, रुको अभी, जा कहां रहे हो, रुको, मजा तो अभी आने वाला है। स्फेयर लेते हैं, स्फेयर लेते हैं, स्फेयर लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस स्फेयर ऑफ डायमीटर डी। हमने लिया स्फेयर, डायमीटर क्या लिया हमने, डी लिया। तो हमने जब लिया स्फेयर, डायमीटर लिया इसका डी, तो इसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो इसका मॉडुलस कहेंगे, तो मॉडुलस ऑफ स्फेयर विल बिकम वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो ऑफ द स्फेयर व्हिच विल गिव यू सी वॉल्यूम क्या होता है, लाइक 4/3 पाई आर क्यू होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसको डी के टर्म में अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिखो 4/3 पाई आर की जगह डी क्यू बाई 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई बाई 6 डी क्यू, राइट। ये हो गया पाई अपॉन 6 डी क्यू इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस, राइट। सो मैंने क्या किया, रेडियस के टर्म में यहां रखोगे, डी बाई 2 रखोगे ना, तो डी का क्यूब और फिर नीचे 2 का क्यूब, तो 8 हो जाएगा। 4 से 8 कट गया तो पाई डी क्यू बाई 6। ऐसा कुछ इसमें फूरियर सीरीज थोड़ी ना लगाया तुमने, लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा दिया क्या? नहीं सर, नहीं, आसान है। देन सरफेस एरिया क्या होता है भाई, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलो सर डाई डी के टर्म में याद नहीं है तो बदलने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, आर की जगह डाला डी बाई 2, 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट करो ना भाई, डी बाई 6 आया। ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर, ये तो मजा आ गया सर, मतलब इतना आसान था, पहले ही याद करना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं है ना, पहले नहीं किया तो अब कर लो। देखो क्यूब है तो मॉडुलस ए बाई 6 आया, सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर बराबर है तो डी बाई 6 आया, स्फीयर है जिसका डायमीटर डी है तब भी डी बाई 6 ही आएगा। याद हो गया, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, अंतिम सांस तक नहीं भूलोगे। लेकिन यहां तक तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब है तुम्हारा जीपी के भाई, जीपी के क्या है सर जी, ये रहा आपका जीपी के, मतलब घर पे करना और याद भी रखना। फोर्थ शेप you have to do it yourself, I will not be doing, I'll give you the hint। एनुलस का निकालना है। सर जी एनुलस क्या होता है सर जी, अरे ऐसा होता है, हॉलो सिलेंडर को एनुलस बोलेंगे। हॉलो सिलेंडर है तो उसको क्या बोलते हैं, एनुलस, बस, बाकी सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। ऐसा तो मान लेना इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, लेट्स से दैट्स डी नॉट, जो इंटरनल डायमीटर है, जो इंटरनल डायमीटर है, लेट्स से दैट्स डी आई एंड हाइट इज लेटर से एच, ठीक है। ये मान के निकाल लेना। ये है जीपी के, पांचवा जीपी के ही है, वो है सिलेंडर का निकालना है। पहली बार जब सिलेंडर का निकाले थे वो तब निकाले थे जब हाइट और डायमीटर बराबर था, अब निकालना है जब हाइट और डायमीटर बराबर नहीं हो। एंड देन छठा जीपी के आपका है, आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ अ प्लेट हैविंग डायमेंशन एल, विड्थ डब्ल्यू, थिकनेस टी, मींस इट्स गोइंग टू लुक लाइक समथिंग लाइक दिस प्लेट। दिस प्लेट, ठीक है। लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, सारे डायमेंशंस आपको मालूम है और आपको पता करना है। लेंथ ये रहा, लेंथ ये रहा, लेंथ ये रहा, लेंथ ये रहा, ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है थिकनेस, कर लोगे। अरे क्या है, इधर भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू टी, कुछ नहीं है, डिवाइड बाई व्हाट, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू टी प्लस 2 इंटू एल इंटू टी, खत्म। इसका करना, इसका करना, ठीक है। और बताना मुझे कमेंट करके यूट्यूब पर। हाँ एक बात और कहना भूल गया, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब एक बार प्लीज शेयर कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ सब्सक्राइबर्स कम है, थोड़े बढ़ाइए ना प्लीज, मजा आएगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, मजा आ रहा है सर, आएगा ही ना, अनमैचेबल तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। चलो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था ना, मॉडुलस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ राइजर होना चाहिए क्या, हमेशा ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। इससे पहले कि राइजर डिजाइन के बारे में मैं आपको कुछ और भी जानकारी दूं, लेट मी जस्ट टेल यू दैट देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजर्स व्हिच एग्जिस्ट। अलग अलग तरीके के राइजर्स होते हैं, कैसे मैं दिखाता हूं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मजा आ जाएगा देख करके आपको। लेट्स से दिस इज आर मोल्ड, in this mold we have one mold cavity and ये कुछ ऐसा दिखता है, ये स्क्रू है, इधर से मोल्टेन मेटल को डाला जाएगा,
रनर चैनल मान लो कि है, मोल्टेन मेटल इससे बहता हुआ आगे बढ़ेगा, और मान लो कि ये तुम्हारा राइजर है, ये तुम्हारा राइजर यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है सर, अच्छा दिखता है, ये है राइजर, और यहां से मोल्टेन मेटल फिर ऐसे इस तरफ जा रहा है, और मान लो ये कैविटी है तुम्हारा, कुछ ऐसा बना दो, क्या दिक्कत है, कास्टिंग तो बहुत अलग अलग डिजाइन से बनाए जाते हैं। चल, ये कैविटी है, ये कैविटी है, ठीक है, चलेगा ना, बढ़िया, ये कैविटी। अच्छा, एक सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन देखो, दूसरा सिचुएशन देखो, फिर मैं बताऊंगा कि ये चीजें हैं क्या आखिर, और इन सब का क्या अलग अलग मजा है, और इन सब में क्या क्या अलग अलग समस्याएं हैं। सारी समस्याओं का समाधान होगा, घबराना भी नहीं है आपको। मान लो कि ये क्या हो रहा है, कि बेवफा हो रहा है, सुनो, ये देखो। हाँ, कृपा यहीं रुकी, चलो थोड़ा बहुत ऐसा तिरछा भी चलता है क्या भाई। चलो इधर देखो, मान लो भैया मेरे, इधर से स्प्रू आया, लिक्विड मेटल इससे होके आया, रनर होके गुजरा, रनर होके गुजरते ही ये, अब राइजर यहाँ पे ऐसा कुछ है, राइजर यहाँ पे ऐसा कुछ है, और ये रहा हमारा मोल्ड कैविटी, ठीक है, ठीक है सर जी, मजा आ गया। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, चारों तरफ यहाँ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा फैला है, अरे नहीं, चारों तरफ यहाँ मोल्ड मटेरियल है, चारों तरफ यहाँ सैंड क्ले वाटर का मिक्सचर, जो कि आपने यहाँ पे रैम करके रखा है, और बीच में वो क्या है, कैविटीज हैं, चैनल्स हैं, जिसमें लिक्विड मेटल पोर करोगे वहां जाके सॉलिडिफाई होगा, दैट्स इट। एक बात है, यहाँ पे अगर हमने लिक्विड मेटल को डाला ना, यहाँ पे हमने लिक्विड मेटल को डाला तो क्या सर आगे क्या बोलोगे, लाइव झींगा लगा, अरे नहीं बाबू, लिक्विड मेटल को डाला तो लिक्विड मेटल आगे से बहेगा बहेगा बहेगा, थोड़ा इधर भरेगा भरेगा, फिर इधर आके ऐसे इसमें भरेगा भरेगा, और फिर इसके बाद इसको भरने के बाद यहाँ पे राइज करेगा, ये राइजर है। चलो, ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, लिक्विड मेटल आएगा आएगा आएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, भरेगा भरेगा भरेगा, बाकी बचा लिक्विड मेटल, ये बाकी वाले कैविटी में राइज करेगा, इसे इसका नाम होता है राइजर, यहां से निकल जाएगा बाहर। हाँ जी, और पता है, आप यहाँ पे लिक्विड मेटल डाल रहे हो, लिक्विड मेटल यहां से बाहर निकल गया, तो आप जो यहाँ पे बैठे हुए हो, आहा आप हो गए, मजा आ गया, कैविटी फिल हो चुका है, इसके लिए लिक्विड मेटल यहां से बाहर निकला। लेकिन इस केस में क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, मतलब कहने का ये है, जरा समझो, जरा ध्यान दो माय डियर, इन द फर्स्ट केस व्हेन यू pouring the liquid metal it will fill the cavity, will fill the riser. Second case, you are pouring the metal, will fill the cavity, then liquid metal will start to rise in this cavity, and then from here it will come out, you know. The first one, my dear lovely students, is what we name as, the first one, my dear lovely students, what we name as, first one, this one is what we name as blind riser. अंधा है बेचारा, बहरा का तो पता नहीं, बट अंधा जरूर है, दिखा नहीं यहाँ, इसलिए ब्लाइंड राइजर, ये बाहर देख नहीं सकता है, ये वाला अरे खुला है, खुला भैया बाहर तक देखेगा, इसको बोलते हैं ओपन राइजर, ठीक है। तो दोनों राइजर का जो प्राइमरी काम है वो क्या है, पहले दो स्टेज के श्रिंकेज को कंपनसेट करना, लेकिन ओपन राइजर एक एक्स्ट्रा काम और करेगा, ये आपको बताएगा कि लिक्विड मेटल कैविटी में पूरा अच्छे से फिल हुआ है या नहीं। Both risers will compensate for the first two stages of shrinkage, which are the primary, which is the primary function of the riser. That both of them will fulfill. But that blind riser will not let you know that whether the casting is fully filled or not. And this open riser will let you know that yes, casting has filled. How will you come to know? Because the liquid metal which you have poured over here will come out from here. That's it. है ना। अब सुनिए ध्यान से, एक तो ये वैरायटी है राइजर का, अब दूसरा प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, घबराइए मत, देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक कोई एक यहाँ पे ऐसे मोल्ड है बड़ा सा, इसके अंदर चलो स्प्रू वगैरह तो होंगे ही होंगे, वो तो अवश्यंभावी है, यहां से स्प्रू से लिक्विड मेटल नीचे आया, इस तरफ से आगे बढ़ा, एक राइजर मान लो यहां पे ऐसे, और ये है हमारा मोल्ड कैविटी ऐसे, सॉरी थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिया ना, नीचे करता हूं, ये है मान लो मोल्ड कैविटी, और एक और राइजर बनाता हूं मैं यहाँ, क्या घबराना थोड़ी ना, एक और राइजर बनाता हूँ, क्या दिक्कत है, दो दो राइजर लगाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रहा एक अलग राइजर, दो दो राइजर हैं। अच्छा, साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाले राइजर का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये किस तरफ है, ये वाले राइजर का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे वो किस तरफ है,
ऐसा लग रहा है ना मोल्ड के साइड में, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग साइड राइजर। लेकिन दूसरा वाला जो दिख रहा है, this one that you are observing over here, that looks like this is like at the top of the cavity ना, ये ऐसा लग रहा है ना कि कैविटी के ऊपर में बैठा हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं टॉप राइजर। क्या बोलते हैं? टॉप राइजर। देखो क्या फर्क है दोनों में। अगर ये साइड राइजर है तो जब हीट का ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो इस राइजर के जितने सरफेस एरियाज हैं ऑलमोस्ट उन सारे ही सरफेस एरियाज से हीट का ट्रांसफर होगा। फ्रॉम द ऑल द सरफेस एरियाज ऑफ दिस राइजर द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। बट लुक एट दिस राइजर here, as the liquid metal will fill, you see here as the liquid metal will fill, what are you going to observe is this is that liquid metal that has already been filled inside, and then liquid metal rises there inside this riser cavity as well. It rises there inside the riser cavity as well. So क्या हो गया? ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, कुछ तो हुआ। कौन? दया। दया कौन है? अरे ये इधर से आएगा। हाँ, कहीं कहीं पता है बदमाशी करता है, बोलता है ना मेरे को पढ़ने का मन नहीं है सर, तो इसको पीट पीट के फिर समझाना पड़ता नहीं कि देखो उधर अपने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना, तू भी पढ़, बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बोलता है, तो बोलता क्या नहीं मैं बड़ा आदमी नहीं बनेगा, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा बोर्ड है, मैं छोटा ही सही है, ऐसा बोलता। मैं क्या करूं? ये क्या हो गया भैया? इरेजर, इरेजर इज देयर एंड देन दिस इज द साइज ऑफ द इरेजर, देन आई एम ओके। हाँ ये सही हुआ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब देखो क्या होगा भैया। हीट ट्रांसफर होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? फॉर द हीट ट्रांसफर टू टेक प्लेस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू नो? टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ क्या है? चारों तरफ क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है? नहीं 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 सर, अंधेरा ही अंधेरा नहीं है, सैंड मोल्ड मटेरियल है। ये क्या है? सैंड मोल्ड मटेरियल। ये क्या है? चारों तरफ सैंड मोल्ड मटेरियल है। ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, आएगा, आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। कैसे? यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे लाइक हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से, ये सारे सरफेस पे होगा। लेकिन यहाँ पे जो बैठा हुआ है देखो बॉटम सरफेस, राइजर का जो बॉटम सरफेस है भाई, उससे किसी तरह का कोई हीट ट्रांसफर होगा क्या? राइजर का जो बॉटम सरफेस है उससे किसी तरह का कोई हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड मेटल का लेवल यहाँ पे सेम है। तो जो टेम्परेचर ऊपर में होगा वही टेम्परेचर नीचे में भी होगा। मतलब इस केस में राइजर के बॉटम सरफेस से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मींस यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ इट इज अ साइड राइजर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स सरफेसेस, but if it's a top riser then the bottom portion of the riser, that is the top riser, will not participate in the heat transfer, so that surface area will not be accounted while calculating the solidification time of this top riser. टॉप राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम काउंट करते समय उसका बॉटम सरफेस एरिया काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वहां से हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this was a mere small insight about riser. Many more things we are going to discuss in the next session, that is about riser design, where I will be showing you and discussing different methods of riser design. Like you would have heard Keynes method of riser design, Neville's research method of riser design, modulus method of riser design, conventional method of riser design. These are the 4 different design processes through which we design the riser in different circumstances. So सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड हाँ अनमैचेबल पे जो कोर्सेस बहुत ही सच में अनमैचेबल कोर्सेस हैं वो कैसे है क्या है उनको देखने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.unmatchable.in। आप प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अनमैचेबल। इतना ही नहीं, आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो 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 नीचे देखो वो सारे कोर्सेस के लिंक भी दिए हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस अवेलेबल है, फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल है। देन अनमैचेबल पावर प्रोग्राम यू सी जबरदस्त है आप सब लोगों के लिए। और तुरंत ही हम लोग लेके आ रहे हैं एक ऑसम सा टेस्ट सीरीज और एक ऑसम सा क्रैश कोर्स। बने रहिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय।